آپ سب پر سلامتی ہو۔ عباس عراقی کا لکھا ہوا ہے، کفن باندھے ہوئے سر پر یہاں احرار بیٹھے ہیں، جلا کر اپنے ہاتھوں سے یہ سب گھر بار بیٹھے ہیں، صبا تو چھیڑتی ہے بے سبب اس دل شکستہ کو، کہ جی میں عشق کا ہم تو لیے آزار بیٹھے ہیں، انا معدوم ہے ان کی جو ذلت مول لیتے ہیں، کہ لے کر اپنی عصمت کو سرے بازار بیٹھے ہیں، زمانہ ہو گیا شاطر عراقی پاس اپنا رکھ، جنہیں بچنے کا فن آتا ہے وہ ہوشیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ جو خراب گھڑی بھی ہوتی ہے وہ دن میں 2 وقت صحیح وقت بتا دیتی ہے، لیکن چوری کی گاڑیاں صرف پیٹرول ہی مہنگا کروا سکتی ہیں، کیونکہ آج آ کے آپ کو ان میں پیٹرول ہی تو بھروانا ہوتا ہے، سو آپ وہی مہنگا کرتے ہیں اور عوام سے پیٹرول کے پیسے بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ میں توشہ خانہ سے گھڑی اور دیگر قیمتی تحائف بیچنے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اسے بیچ ڈالیے، لیکن حضور والا، یہ حرکت سیاسی انتقام کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن عوامی مسائل کچھ اور ہیں، اس لیے عوام ابھی بھی اس شخص کی مالا جپ رہی ہے۔ سرکار، آپ ایسی برق رفتار گرفتاریاں کروا کر کہیں کہ عوام ہر سفید چیز کو دہی کہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سرکار، جب عوام کے دماغوں کی دہی بنا دی جائے تو عوام اس کی لسی بنانا سیکھ ہی جاتے ہیں۔ عوام سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کی منطق کیا ہے اور آپ جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں اس پر کس حد تک ناچنا ہے، کس حد تک آپ کا راگ الاپنا ہے۔ عوام کو اس کی پوری سمجھ بوجھ ہے۔ سرکار، عوام جواب مانگتی ہے ان گاڑیوں کا جو آپ کے دور حکومت میں توشہ خانہ سے چوری ہوئیں اور ایٹ لیسٹ گم ہو گئیں۔ آپ نے گاڑیوں کو گم کر دیا، لیکن کم از کم ٹائرز کا ہی پتہ کروا لیں۔ سرکار، جب عدالتیں رات 12 بجے فیصلہ سنا سکتی ہیں تو کئی لوگ انصاف کی تلاش میں کورٹ کچہریوں کے چکر پہ چکر کاٹنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ کیوں اب تک سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے سالوں سے ہونے والے گھناؤنے فیل کے مرتکب مجرم کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا؟ کیوں اب تک وہ تمام اربوں کھربوں روپے کے کیسز جو نیب سن رہا تھا اس کو ابھی تک منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا؟ کیوں اب تک عدالتوں کے چکر پہ چکر لگوائے جاتے رہے، پروسیکیوشن پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا رہا اور مقدمے کا انجام 0 نکلا؟ آپ اپنے تمام تر مقدمے چلا لیتے ہیں، لیکن عوام کو کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ یا عوام بھگتتی ہے یا آپ کا مخالف بھگتتا ہے، جو بھی برسر اقتدار ہو۔ اگر میں حوالہ دوں، یہ 11 جون 2020 کا دن تھا جب اخباروں کی زینت ایک خبر بنی تھی۔ اس خبر میں لکھا گیا وہ سنیے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ یہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں۔ نواز شریف اس وقت لندن میں مقیم تھے اور عدالت نے وزارت خارجہ کو حکم دیا تھا کہ وہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائے۔ یہ جس دن کی خبر تھی اس دن یہ لکھا گیا تھا کہ جمعرات کو اس ریفرنس کی سماعت شروع ہوئی تو نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی نے عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم نواز شریف ان دنوں لندن میں مقیم ہے اور ان کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا گیا۔ حالانکہ پتہ سبھی کو معلوم تھا، لیکن انہیں لگ پتہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں اور یہ وہی فلیٹس ہیں جن کے ریفرنس میں مجرم نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے نیب کے وکیل کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج نے اس ریفرنس کے شریک ملزم اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی 1 دن کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست کو بھی منظور کیا تھا۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل ان دنوں کراچی میں ہیں اور وہ کورونا وائرس کی وجہ سے اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ یہ تب بھی عدالتوں سے راہ فرار تھا۔ تب کسی کو یاد نہیں آتا تھا کہ عدالت بلاتی ہے تو پیشیوں سے انکار کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ملزم کے عدالت میں پیش ہونے کی صورت میں کمرہ عدالت میں لوگوں کا رش بڑھ جائے گا، جو کہ موجودہ حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ مقدمے کے ایک اور شریک ملزم اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی، جس پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا تھا۔
आपने मुखालिफین को दबाना है, आईन और कानून के मुतरादिफ कोई चीजें हुई हैं, मुखालिफ कोई चीजें हुई हैं तो उसके पैराए में जांचना चाहिए। उस वक्त रेफरेंस की समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी गई थी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर इल्जाम था कि पाकिस्तान के सबसे अहम ओहदों पर फाइज रहने वाली ये सियासी शख्सियात मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां मामूली रकम अदा करने के बाद तोशाखाना से अपने हमरा ले गए थे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से एहतसाब अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कजाफी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह की तरफ से गाड़ियां तोहफे में मिली। उन्होंने कहा था कि साबिक सदर ने यह गाड़ियां तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय जाती तौर पर इस्तेमाल की। यह मामला वो नहीं है खरीदने का, ये वो है कि तोशाखाना में भी जमा नहीं करवाई गई और जाती इस्तेमाल में ले आए। नैब के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% कीमत अदायगी के बाद ये गाड़ियां जाती इस्तेमाल के लिए हासिल की और नैब के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इन गाड़ियों के लिए रकम की अदायगी भी जाली अकाउंट्स के जरिए की गई थी, यानी डायरेक्ट रकम भी अदा नहीं की गई थी। तोशाखाना में तैनात एक एहलकार के मुताबिक अगर किसी सरबराह मुमलिकत या चीफ एग्जीक्यूटिव को किसी दूसरे मुल्क के सदर या चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से 10 लाख रुपए मालियत तक का तोहफा मिलता है तो वो उसे अपने पास रख सकता है, जो अभी सिर्फ 30,000 है अब के कानून के मुताबिक। तब 10 लाख का था और उस वक्त 10 लाख की कीमत जो है उसका तयन आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इस तोहफे की कीमत 10 लाख से ज्यादा हो तो उसे तोशाखाना में जमा करवाना होता है और आप वो अपने पास नहीं रख सकते। वो भी चीजें अपने पास रखी गई, लेकिन उसका एहतसाब कोई नहीं करना चाहता क्योंकि बरसर इक्तदार ये अब खुद बैठे तो कौन एहतसाब करेगा। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अभी जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफदर ने दायर की है। दरखास्त में तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया और यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी की थी और इसी वजह से केस वापस रेफर जज हुमायूं दिलावर को किया गया था। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया और केस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए और दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। अब मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन से पहले तक वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, आज उन्हें मिलने दिया गया है। इसकी जो बड़ी वजह सामने आई है कि अपील के हक से महरूम रखना था और उसके लिए कुछ वक्त दरकार था कि कुछ वक्त उन्हें जेल के अंदर ही रखा जाए। वो वजह क्या है जेल के अंदर रखने की? जेल के अंदर रखने की वजह यह थी कि आप इन्हें जेल के अंदर रखें, जेल के अंदर रखने के बाद 3 से 4 दिनों में या 5 दिनों में जब इन्हें बाहर लाया जाए और अवामुन नास के सामने पेश किया जाए तो अवामुन नास के सामने इस तरीके से पेश किया जाए कि बाल बड़े हुए हों और सफेदी उसमें जाहिर हो रही हो और लोगों को बताया जाए कि पहले जब ये मीडिया पे आते थे तो मेकअप करके आते थे, ये हाल है इनका। दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा के बारे में अब कुछ बातें की जा रही हैं कि बुशरा बीबी शायद हो सकता है वादा मुआफ गवाह बन जाएं और बुशरा बीबी को बाकायदा इंजेक्ट किया गया और हो सकता है कि हर मामले के ऊपर बुशरा बीबी वादा मुआफ गवाह बने और दीगर जो वादा मुआफ गवाह बने हुए हैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो बुशरा बीबी की तरफ से मैसेज जाए और कुली तौर पे अवाम को यह पैगाम दिया जाए कि अगर बुशरा बीबी वादा मुआफ गवाह बन चुकी हैं तो फिर बाकी पीछे कौन रहता है। लेकिन मेरी नजर में ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज ही साबिक वज़ीर आज़म ने अपने वकील के जरिए हुकाम से यह मुतालिबा किया है कि उन्हें उनकी अहलिया बुशरा बेगम से मिलने की इजाजत दी जाए। उनके मुताबिक उनका यह कहना है कि यह मेरे घर पे तीसरा हमला था और इस दौरान बुशरा बीवी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, मुझे पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए। उनके मुताबिक यह बताया गया कि मुझे 9 मई की तरह दोबारा अगवा किया गया है। जज साहब उजलत में कार्रवाई कर चुके हैं और वकील ने यह भी बताया है कि चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो डटे हुए हैं मगर अभी तक गुलामी को कबूल नहीं किया। आइंदा का लाहेअमल जो है वो कोर कमेटी करेगी और मेरी मुशावरत के जरिए वो कोर कमेटी आइंदा के लाहेअमल को तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज
आमिर फारूक पर एतमाद नहीं है, यानी उन्होंने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि जस्टिस आमिर फारूक ने पहले भी मेरी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, हालांकि बाद में उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, इस वजह से मुझे उनके ऊपर एतमाद नहीं है, और उन्होंने जिस जज को यह केस रेफर किया है उसके ऊपर तो मुझे कुली तौर पर एतमाद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के वकला की टीम में शामिल नईम हैदर जो हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने अटक जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में तकरीबन 1.25 घंटे के करीब मुलाकात की है, और उस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पे गौर किया गया, और जेल के अंदर जिस तरीके से जिंदगी गुजारी जा रही है उसके हवाले से उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया है। और वो ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें ये बताया है कि मुझे इन्होंने सी क्लास में रखा हुआ है, छोटा सा चक्की वाला कमरा मुझे दिया गया है, ओपन वॉशरूम दिया गया है, कमरे में दिन को मक्खियां रात को कीड़े होते हैं, मुझे खाने को जो मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उन्होंने खाने के हवाले से कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा जी जेल में जिन लोगों को खाना दिया जाता है वही खाना मुझे दिया गया, उस पर अल्लाह का शुक्र है। अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, सी से डी में भी ले जाते हैं। उनका यह कहना है कि मीडिया पर जाकर बताऊंगा कि मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी भी जेल में गुजारना पड़ी तो गुजार लूंगा। उनके वकील नईम हैदर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने यह कहा कि मुझे अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, यहां ना तो टीवी की सहूलत मौजूद है, ना ही मुझे रोजाना का अखबार दिया जा रहा है, ना ही किसी से मेरा कोई राब्ता कराया जा रहा है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं। उनके वकील के मुताबिक इस सब के बावजूद चेयरमैन पीटीआई को तकलीफ में रखा हुआ है, मगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उनके वकील नईम हैदर ने यह भी बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से पावर ऑफ अटर्नी और वकालतनामे पर भी दस्तखत करवा दिए, क्योंकि कल के दिन शुएब शाहीन साहब ये कह रहे थे कि जब तक हमें मिलने नहीं दिया जाएगा, दस्तखत नहीं होंगे तो वकालतनामा किस तरीके से जमा करवाया जाएगा, तो हमें मिलने दिया जाए। आज फिर मुलाकात के लिए कहा गया, तो वकील के मुताबिक हम इस्तदा करते रहे कि हमारी मुलाकात सुबह 9 बजे कराई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस को हमने चैलेंज करना था, मगर इन्होंने 12:30 बजे जेल में जाने की इजाजत दी है। अब इस पूरे मंजरनामे में आप ये देखें कि सी क्लास के ऊपर भी वो कहते हैं कि अगर डी क्लास दी जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो खाना मुझे मिला है मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें दे दी जाएं, जो बुनियादी चीजें मुझे यहां पे दी जानी चाहिए। लेकिन बुनियादी चीजों को हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, होम डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या अदालत के फैसले से मशरूत कर दिया है कि अदालत अगर हुक्म जारी करेगी तो आपको ये तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। अब इस पूरे मंजरनामे में बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू होंगी, और वो खबरें कौन फैलाएगा या किस तनाजुर में फैलाई जाएंगी, उसका वाहिद पैगाम यही होगा कि किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए, किसी ना किसी तरीके से जो दीगर वादा माफ गवाह हैं उन तक यह पैगाम पहुंचाया जाए कि भाईजान अगर आप वादा माफ गवाह नहीं बनते तो घर का भेदी वादा माफ गवाह बन रहा है, और ऐन मुमकिन है कि घर का भेदी वादा माफ गवाह ना बने, ये खबरें सिर्फ फैब्रिकेटेड हों, लेकिन ये फैलाई जाएंगी और एक तरह का खौफ पैदा किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, गुज़श्ता रोज हादसे का शिकार होने वाली हजारा एक्सप्रेस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल हुई है। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि सियासत में और मुल्की मईशत में और मुल्की निजाम में किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है। जहां पे टूटी हुई थी वो फिश लाइन से जोड़ने की बजाय यह बताया गया है कि हादसे की जगह से लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स मिसिंग थी। इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है कि टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हादसे का शिकार ट्रेन के इंजन के व्हील भी खराब थे, ताहम तखरीबकारी को खारिज एज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 16 के दूसरे 3 अफसरान ने अपने तीनों अफसरान की राय से इत्तफाक नहीं किया। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस जो है वो नवाबशाह में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई थी, और हादसे में ट्रेन की 10 बोगियां, 1-2 नहीं 10 बोगियां पटरी से उतरी थी, जिसके नतीजे में 30 अफराद जाँ बहक हुए थे और 80 के करीब जख्मी हुए थे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा था कि हजारा एक्सप्रेस जो है यह हादसा तखरीबकारी भी हो सकता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे इसकी तहकीकात करेगा। अब जो तहकीकात हुई हैं उसके बाद जो मंदरजात सामने आए, क्या यह तखरीबकारी नहीं है?
کہ یہ کسی نے تخریب کاری نہیں کی کہ آپ وہاں پہ فش پلیٹس لگانے کی بجائے آپ نے لکڑی کا ٹکڑا لگا دیا. اور یہ سب سے بڑی تخریب کاری ہے. یہ جس طریقے سے جونکہ سسٹم کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور وہ جو صرف اپنے کیسز کو دباتے ہیں اور دوسروں کو پرووک کرتے ہیں اور ان کے کیسز کو منظر عام پہ لاتے ہیں, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر چلنا ہے تو برابری کی بنیاد پہ چلیے. یہ نہ ہو کہ 3 مہینے آپ نے ایک کو دبایا, اگلے 6 مہینے وہ آپ کو دبائے اور پھر اگلا سال آپ اس کو دبانے کی تگودو کرتے ہوں. عوام دبتے چلے جا رہے ہیں. عوام کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ عوام کے لیے کبھی سوچتے بھی ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے جتنا ظلم و جبر عوام کے اوپر مسلط کر دیا ہے, یہ کسی دن پھٹے تو ہمیں کس طرح کا منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا؟ یہ جس دن آپ نے سوچ پیدا کر لی, اس دن سے ہی پاکستان کا مستقبل بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.